रैंडम वेइंग इन जो है वो हेवी वेट कैटेगरी के लिए नहीं है, एंड जनरल वेइंग इन जो है वो सभी प्लेयर के लिए है और सभी कैटेगरीज के लिए है। Second point is the day before the concerned weight category competition is general weighing in, and random weighing in the morning of competition day of the concerned weight category. Random weighing in competition वाले दिन morning में competition से पहले किया जाता है। International referees male for male, female for female, general weighing in, and same process for random weighing in, same referee and same official. And the general weighing in for 2 hours duration, and random weighing in instantly, because sometimes in random weighing in very less athletes, so it's depend on maybe 30 minutes and 40 minutes like that. Each athlete can try twice general weighing in. If not clear in first attempt, then they have one more chance and they have to finish before 2 hours. Random weighing in, each athlete can try once. एक बारी में आपको खड़े होना है और अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। From 10 to 12 p.m. recommended time for general weighing in day before, and random weighing in maximum 2 hours before the start of competition and 1 hour prior competition start is recommended, depends on organizer. Next. Sorry to interrupt. Junior and cadet shall not weigh in nude. This point is very important for all coaches. Junior and cadet category के जो players है उनको nude weighing in देने की जरूरत नहीं है. Athletes shall wear underwear and braziers. 100 grams allowance shall be made. जो junior और cadet categories है उनको 100 grams की छूट है. Senior may weigh in the nude. भी उसे जितना भी रूल्स जितना भी नॉलेज मैं शेयर कर सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास 1 आवर. Athletes shall cut finger and toe nails before allowed to weighing in. Weighing in से पहले एथलीट्स के सारे नेल्स के फिंगर के और टोज के नेल्स कट होने चाहिए. रैंडम weighing in का जो टॉलरेंस है 5% अलाउंस फॉर सीनियर मेल. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो भी कोचेस है वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग. आप चाहे तो मैं 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे होल्ड करती हूँ अगर आपको नोट डाउन करना है तो. और जो भी क्वेश्चंस अभी भी आपके मन में आ रहे हैं तो आप पेन डाउन करके रख दीजिए. जब सेशन के खत्म के बाद आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. आई विल आंसर. रैंडम weighing in for 5% अलाउंस फॉर सीनियर फीमेल्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोचेस के लिए. कई बार कोचेस को पता नहीं होता कि नेक्स्ट डे कितना वेट आना चाहिए एथलीट का और कितने में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या नहीं होगा. तो इस चीज को आप पेन डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज परमिटेड टेक्निक्स. परमिटेड टेक्निक्स, फिस्ट टेक्निक, a straight punch technique using the knuckle part of tight clinch fist. Foot technique is delivering techniques using any part of foot below the ankle bone. I hope all coaches know very well for this. Permitted areas. Attack by fist and foot technique on the area covered by the trunk protector are permitted. However,
Such attacks shall not be made on the part of spine. Balu sir, is there any problem? Am I audible? Yes, please carry on. It's audible. Please carry on. Oh, okay, sir. Thank you, sir. The area above the collarbone, only foot technique are permitted for head. Valid points. 1 point for valid punch attack on trunk protector. 2 points for valid kick attack trunk protector. 4 points for valid turning kick to the trunk protector. 3 points for valid kick to the head. 5 points for valid turning kick to the head. 1 point awarded for every gum jump given to opponent. This is also very important for all coaches. Can I hang it for a second? Crossing the boundary line. I skip maybe something. Crossing the boundary line. Crossing the boundary line is very, very important for athletes and coach as well, because crossing the boundary line, you have quota for asking opponent. So coaches, this is very important. 1 foot must completely cross the boundary line and touch the mat. That is crossing the boundary line. No more vertical plane. But if the front of the toe is out, the heel up in bounce means यहाँ पे boundary line है, it is gum jump. कई बार क्या होता है, प्लेयर जो एथलीट मान लीजिए चौंग है, चौंग का जो टोज एरिया है वो बाउंड्री लाइन से बाहर है और उसका हील उठा हुआ है, तो भी वो क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन है. Note that a score may be invalidated and a gum jump given if either contestant has crossed the boundary line. For example, चौंग is in bounce. बाउंस का मतलब मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, बाउंड्री लाइन है तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है. एंड स्कोर ऑन हाउ हु इज आउट ऑफ बाउंड्स. चौंग इज स्कोर विल बी वैलिड एंड हाउ शैल रिसीव अ गम जंप फॉर क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन. आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी पॉइंट है. इफ चौंग इज आउट ऑफ द बाउंड्री एंड स्कोर, ही और शी विल रिसीव अ गम जंप एंड पॉइंट विल बी इनवैलिडेड. पिक्चर इज मोर क्लियर. आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में बहुत क्लियर तरीके से मैंने दिया हुआ है. यहाँ पे 1 foot must completely cross the boundary line. यहाँ पे completely फर्स्ट पिक्चर में है. and touch the mat if it is in the air. Space outside the boundary line, it is not considered until the land to mat. जैसे हम का किक अभी ऊपर है, एयर में है, अगर उसका किक मारने के बाद वो लैंड करता है बाउंड्री लाइन से बाहर, तब क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन का गम जंप मिलेगा. अदरवाइज अगर वो अंदर लैंड करता है तो कोई गम जंप नहीं है हाउ के लिए. सेम पिक्चर इसके लिए सेकंड पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. A contestant taking the boundary line and come back again to score. यहाँ पे हॉन्ग को देख लीजिए. हॉन्ग क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन से बाहर गया है, फिर अंदर आके किक मारा है. देयर इज गम जंप पेनल्टी एंड पॉइंट शुड बी इनवैलिडेड. यहाँ पे और एक पिक्चर दिया है, ये बहुत क्लियर है. यहाँ पे जो हॉन्ग प्लेयर है वो दोनों जो लेग है वो बाउंड्री लाइन से बाहर है और बॉडी पार्ट जो है वो अंदर है. तो यहाँ पे ये गम जंप है और जो ब्लू है वो ऑलरेडी बाउंड्री लाइन से बाहर है. गम जंप पेनल्टी. इज दिस स्कोर वैलिड? यहाँ पे कोचेस के लिए स्कोर मैं क्वेश्चन करूंगी, बट टाइम कम है तो हम किसी से क्वेश्चन अभी ले नहीं सकते. अगर दिमाग में आ रहा है नो तो आप गलत है, अगर यस बोल रहे हैं तो ये सही है. क्योंकि जब हॉन्ग ने किक मारी है उसका एक पैर अंदर है और दूसरा पैर जो है वो एयर में है अभी, तो चौंग का गम जंप है, हॉन्ग का अभी गम जंप नहीं है. हॉन्ग किक एयर में मार रहे हैं तो अभी हॉन्ग का कोई
गमजम नहीं है और स्कोर वैलिड है। दिस स्कोर इज वैलिड। फॉलिंग डाउन के केसेस बहुत आते हैं और इसमें भी कोच का जो कोटा है वो यूज करते हैं अपोनेंट के लिए। व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन द सोल ऑफ फीट टच द मैट, जब बॉडी के कोई भी पार्ट सोल को छोड़ के, सोल ऑफ फीट को छोड़ के मैट को टच करता है, दैट इज कॉल्ड फॉलिंग डाउन। इफ बोथ कंटेस्टेंट फॉल्स as a result of incidental collision, shin cross और kicking each other, कई बार प्लेयर जो है वो रशिंग होते हैं, शिन क्रॉस हो जाता है या कंटिन्यूसली एक दूसरे को किक कर रहे होते हैं, नो पेनल्टी शैल बी गिवन ऑन द वेविंग ऑफ। यहाँ पे रेफरी का काम है, रेफरी इसको वेव ऑफ कर देते हैं और वो रेफरी का हैंड सिग्नल होता है। तो इसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कोच को, उनको देखना है कि हाँ आगे क्या होने वाला है। इफ ओनली वन कंटेस्टेंट फॉल्स, यहाँ पे मैं और एक बार एम्फेसिस करूंगी कि इस पॉइंट के ऊपर कि अगर दोनों प्लेयर इंसिडेंटली कॉलिशन है, शिन क्रॉस है और किकिंग ईच अदर है, उस टाइम में अगर दोनों गिर जाते हैं तो वेव ऑफ किया जाएगा। बट अगर एक प्लेयर गिर जाता है तो फॉलन कंटेस्टेंट मस्ट रिसीव गमजम पेनल्टी। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है मैंने। If a contestant falls due to the opponent's prohibited act, gamjam shall not be given to fallen contestant, while penalty shall given to the opponent. जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि Chong falls because of Hong holding her leg. Hong is received gamjam for grabbing. चोंग ने अगर होंग को लेग से हुक करके या पकड़ के किक मारी है और चोंग होंग गिर गया है तो कोई गमजम नहीं है। होंग किक बिलो द चोंग, अगर होंग ने बिलो वेस्ट अगर चोंग को किक मारी है और चोंग गिर गया है उस रीजन से, तो गमजम होंग के लिए है, ना कि चोंग के लिए। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आप सारे पेन डाउन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी पढ़ने की, पर मैं पूरा कवर करना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल्स है। होंग किक्स एंड फॉल्स, होंग गमजम, होंग किक्स एंड चोंग फॉल्स, चोंग गमजम, होंग किक्स एंड चोंग फॉल्स, नो गमजम, होंग ग्रैब एंड चोंग फॉल्स, होंग गमजम, होंग एंड चोंग फॉल्स फॉर इंसिडेंटल कॉलिशन, नो गमजम। अभी हमने बात डिस्कस किया है और बाकी पॉइंट्स है, आप इसको पिन डाउन कर सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा, आगे देखना है। अवॉइडिंग और डिले द मैच, स्टाइलिंग नॉन एगेंसिव स्टाइल और इनएक्टिव और मूविंग बैकवर्ड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन 5 सेकेंड आफ्टर द फाइट कमांड। ये पॉइंट बहुत क्लियर होगा सारे कोचेस को और वो डेली ट्रेनिंग कराते हैं जो हाई लेवल के एथलीट्स है। दे आल्सो वेरी वेल नोन अबाउट दिस पॉइंट कि कोई भी नॉन एंगेजिंग स्टाइल मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी फेकिंग नहीं है, कोई किकिंग नहीं है और ओरिजिनल पोजीशन से 5 सेकेंड आफ्टर। रेफरी यहाँ पे कमांड देते हैं फाइट। 5 by 5 second rules are not fighting. If an air kick missed been launched, the time clock will be reset. यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि 5 सेकेंड रूल तभी लागू होता है जब 5 सेकेंड तक स्टिल कोई भी एथलीट कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर 5 सेकेंड तक वो कोई एक्टिविटी कर देते हैं, चाहे वो किक मिस भी हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्ड किक हैज बीन लॉन्च्ड, द टाइम क्लॉक विल बी रीसेट। इसका मतलब टाइम हम 5 सेकेंड तक काउंट नहीं करते हैं उस टाइम। Do not do fight command when there is 5 seconds or less left of the round. Give gumjam immediately if player is avoiding or not fighting. ये मोस्टली कोचेस कई बार नॉलेज की कमी की वजह से हो सकता है वो कर देते हैं कि आपने तो फाइट कमांड नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, पॉइंट में लिखा हुआ है कि 5 सेकेंड लेस देन 5 सेकेंड राउंड के एंड से पहले, कोई भी राउंड हो, चाहे फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकेंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड हो,
5 सेकंड से पहले 5 सेकंड से कम अगर टाइम रह जाता है तो रेफरी को यहाँ पे फाइट कमांड देने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों इनएक्टिव है वो डायरेक्टली, अगर उनको लगता है चौंग मूव बिल्कुल नहीं कर रहा है और हॉन्ग पार्शियली मूव कर रहा है तो वो चौंग को गमजम दे सकते हैं। और मोस्टली ये थर्ड राउंड में हमें देखा जाता है कि वो रन करते हैं किक ना करके स्कोर को बचाने के लिए। अवॉइडिंग बाय टर्निंग द बैक और क्रंचिंग। यहाँ पे एक पिक्चर भी दूंगी मैं, आप देख सकते हैं जैसे प्लेयर डक करता है, डाउन हो जाते हैं। प्रिटेंडिंग इंजरी, सेंटर रेफरी में आस्क वीडियो रिव्यू टू डिटरमाइन इफ कंटेस्टेंट फेकिंग बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ गमजम। कई बार क्या होता है, कंटेस्टेंट जो है वो प्रिटेंड करता है रेस्ट के लिए, या फिर कई बार क्या होता है वो टेक्निक समझ नहीं पाते कि मुझे क्या अटैक करना है। जब वो कंफ्यूज हो जाता है वो कई बार वो टाइम रेस्टिंग के लिए या फिर गमजम ना हो या गमजम पेनल्टी उसको ना मिले, इस वजह से वो प्रिटेंड करते हैं। तो हमें पता नहीं होता, वी नेवर नो कि इंजरी है कि नहीं है। इसलिए सेंटर रेफरी के पास एक कोटा है। सेंटर रेफरी पहले वीडियो जूरर से पूछते हैं कि ये परमिटेड टेक्निक और परमिटेड एरिया में किक हुई है या फिर ये प्रिटेंड कर रहा है। जैसे कई बार ग्रोइंग पे किक लग जाती है और बहुत फास्ट और रशिंग गेम में पता नहीं चलता है और हमें लगता है हो सकता है प्लेयर प्रिटेंडिंग कर रहा हो, पर जब वीडियो रिव्यू में हम देखते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि वो किक नीचे है या परमिटेड एरिया में है, तो प्रिटेंडिंग है या नहीं है, तो हम उसी हिसाब से अगर प्रिटेंडिंग कर रहा है तो गमजम दिया जाएगा। कंटेस्टेंट आस्क्ड टू स्टॉप कंटेस्ट टू एडजस्ट इक्विपमेंट। बहुत सारे कोचेस कंफ्यूज होते हैं और मैंने कई डोमेस्टिक कंपटीशन में देखा है कि नहीं, आप इक्विपमेंट के लिए एडजस्ट के लिए टाइम मांग नहीं सकते। दैट इज अ रूल, आप इसको लिख सकते हैं, आप लिख के रख सकते हैं कि दैट इज अ प्रोविजन, कंटेस्टेंट आस्क्ड टू स्टॉप द कंटेस्ट एडजस्ट इक्विपमेंट। क्योंकि जो एथलीट है, जो प्लेयर है, उसका सेफ्टी पहले है। कई बार हमें नहीं पता होता है, प्लेयर को हो सकता है कुछ लूज हो गया हो, वेलक्रो खुल गया हो, तो वो टाइम मांग सकता है। अगर आपको लगता है या अनवांटेड है तो रेफरी उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे कि गमजम देना है कि नहीं देना है। पर देयर इज अ प्रोविजन, यू स्टॉप द कॉन्टेस्ट फॉर एडजस्टिंग इक्विपमेंट इफ यू नीड इट। Retreating to avoid an attack or run out clock। प्लेयर भागने की कोशिश करता है, टाइम की वजह से टाइम खत्म होने वाला होता है। एनी टाइम ड्यूरिंग द मैच इफ द कंटेस्टेंट टर्न हिज हर बैक एंड रन अवे। मैंने अभी यही बात कहा है। मोस्ट ऑफ द फाइनल मैच, फाइनल राउंड में, थर्ड राउंड में प्लेयर्स मोस्टली करते हैं क्योंकि उनको उस टाइम में विनर होना होता है। दैट इज गमजम पेनल्टी। If the contestant slide back 3 steps or more without attacking, गमजम। आजकल गेम काफी एडवांस हो चुका है, काफी स्पीड में है, काफी हाइपर है, तो प्लेयर कई बार स्लाइड भी करता है, आगे पीछे जाता है, बट वो यहाँ पे लिखा गया है इफ द कंटेस्टेंट स्लाइड बैक 3 steps और मोर विदाउट अटैकिंग। कोई अटैक मोशन नहीं है, चाहे पंच हो चाहे किक हो, तो उस टाइम में गमजम दिया जाएगा। अगर वो उसके साथ कोई अटैक मोशन है और किकिंग है या पंचेस है तो नो गमजम। क्रंचिंग का यहाँ पे दिया है फोटो, अभी मैंने बोला था आपको दिखाने के लिए, जैसे डक किया है, बॉडी को डाउन किया है। ग्रैबिंग द ओपोनेंट, ये बहुत कॉमन है और मोस्ट ऑफ द प्लेयर का जो टेक्निक होता है वो ग्रैब करते हैं और किक करते हैं। दैट इज पेनल्टी। Grabbing any part of the opponent body, uniform or equipment, or hooking the foot or leg with the arm, that is grabbing penalty. Grabbing, hooking, scooping, trapping the leg, watch for advantage gain। उनको कोई भी एडवांटेज लेने के लिए वो ग्रैब करते हैं, हुक करते हैं, तो स्कूपिंग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सामने वाले प्लेयर को, दैट इज गमजम पेनल्टी। Wrapping leg around the leg of the opponent, जैसे वो हुक कर देते हैं पैर को। मैं आपको दिखा नहीं सकती अभी, बट कोचेस जानते हैं कि कैसे रैपिंग द लेग अराउंड द लेग ऑफ ऑपोनेंट कर सकते हैं, उनको पता है। एनिमल किक, सॉरी आई स्किप। एनिमल किक व्हाइल क्लिंचिंग इन कंसिडर एज ग्रैबिंग। कोई भी एनिमल किक है, एनिमल किक आप सभी जानते हैं, फिश किक,
monkey kick and scorpion kick. ये एनिमल किक्स है। क्लिंचिंग पोजीशन में इसको ग्रैबिंग का हैंड सिग्नल मिलता है। कई बार कोचेस कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे प्लेयर ने ग्रैब ही नहीं किया है, वो तो खाली टच किया है, बॉडी टच किया है, उसने होल्ड नहीं किया है। क्लिंचिंग आल्सो कंसिडर एज ग्रैबिंग ड्यूरिंग द एनिमल किक। If contestant is grabbing with one hand or on the hogo and pushing other hand, it will be considered as grabbing and gum jump will be assist immediately. कोई भी प्लेयर है एक हाथ से पीछे की तरफ से ग्रैब करता है ताकि रेफरी को पता ना चले, और दूसरे हाथ से पुश करने की कोशिश करता है कि वो ये दिखाने की कोशिश करता है मैं तो किक मारने के लिए उसको पुश कर रहा हूँ, बट वो अदर हैंड से ग्रैब कर रहा होता है, दैट इज ग्रैबिंग। Light grabbing is tolerated to encourage more dynamic and exciting match. ये रेफरीज का काम है, कोचेस को नॉलेज भी होना चाहिए इस बारे में। जो लाइट ग्रैबिंग है वो टॉलरेटेड है, प्लेयर कर सकते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फाइट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना थोड़ा बहुत तक करना पड़ेगा। बट हमारा जो काम है, जो रेफरी का काम है, वो एनकरेज करे गेम को और एक्साइटिंग बनाने के लिए, उसके लिए लाइट ग्रैबिंग इज टॉलरेबल। डू नॉट इंटरफियर टू मच, लेट द कंटेस्टेंट फाइट। यहाँ पे रेफरी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि बार बार इंटरफेयर करने से मैच जो है उनका फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनका जो टेक्निक्स होते हैं वो जो सालों साल प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हम बार बार रोकते हैं तो वो किक नहीं कर पाते। तो इस बात का ध्यान भी रखे रेफरी कोचेस कि लाइट ग्रैबिंग इज टॉलरेबल। If one contestant is grabbing and opponent is pushing to get away, the gum jump shall be given to contestant grabbing. यहाँ पे चोंग ने ग्रैब कर रखा है, हम कोशिश कर रहा है कि पुश करे और किक करे, पर चोंग ने उसके होगो को पकड़ रखा है, तो यहाँ पे गम जम्प जो है वो चोंग को है। Kicking while clinching, animal kick. Attacking turning PSS with the side or bottom of the foot, having the knee pointed out while clinching, hand signal is grabbing. जो एनिमल किक है, फिश किक है, मंकी किक है और स्कॉर्पियन किक है, इसका जो हैंड सिग्नल है वो ग्रैबिंग है। मैंने पहले भी बोल रखा है, फॉर एग्जांपल मंकी किक और फिश किक। क्लिंचिंग आर्म्स पास अपोनेंट बॉडी लाइन, सारे कोचेस को पता है ये बात। जो दोनों हाथ अगर अपोनेंट के बॉडी को पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, दैट इज गम जम्प पेनल्टी। यहाँ पे पिक्चर मोर क्लियर, आप देख सकते हैं पिक्चर को। मैं आगे मूव करूंगी। पुशिंग द अपोनेंट, पुशिंग इज नो लॉन्गर अ गम जम्प पेनल्टी एक्सपेक्टेड। पुशिंग इज अलाउड इन ताइक्वांडो। सभी प्लेयर्स को, सभी कोचेस को पता है पुशिंग अलाउड है, बट कहाँ पे अलाउड नहीं है वो पॉइंट में बोलने जा रही हूँ। पुशिंग द अपोनेंट आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन, अगर कोई भी प्लेयर पुश करके बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाता है, दैट इज गम जम्प पेनल्टी। पुशिंग इन द वे दैट प्रिवेंट अटैकिंग मोशन और एनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ अटैकिंग मूवमेंट। अगर चोंग ने पुश किया हम किक करते टाइम, दैट इज पुशिंग, उस टाइम में हम पेनल्टी देते हैं। If kicking leg is still in the air but the kick is complete, this point is very very important for coaches. पहले पॉइंट में जो हमने यहाँ पे दिखाया है, pushing in the way part that prevents attack motion. मान लीजिए यहाँ पे चोंग किक कर रहा है और ड्यूरिंग द किकिंग अगर चोंग ने पुश किया है, दैट इज पुशिंग। बट जब चोंग ने किक कर लिया, किक ऑलरेडी डन कंप्लीट, देन चोंग को लैंड करना चाहिए। अगर उसने नहीं किया है, एट दैट टाइम अगर होंग पुश करता है, दैट इज गम जम्प पेनल्टी फॉर फॉलिंग डाउन, जो गिरता है उसके लिए। यहाँ पे पिक्चर है। लिफ्टिंग लेग नी, lifting the leg or knee to block the impede the opponent kicking attack. सामने वाला किक करता टाइम जब नी लेफ्ट करते हैं, नी लेफ्ट करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं,
या पैर भी अड़ा देते हैं कई बार, किकिंग मोशन में किक तो अड़ा देते हैं, दैट इज पेनल्टी. Lifting the leg above PSS or kicking for more than 3 seconds to impede opponent attacking movement. Kicking is aiming below the waist and no follow up high kick. इस पॉइंट को बोलूंगी. पहले वाला पॉइंट मेरे हिसाब से आप सब समझते हैं. Lifting a leg above PSS, kicking more than 3 seconds to impede opponent attacking movement. More than 3 seconds PSS लेवल से ऊपर आप नहीं रख सकते. Kick is aiming below the waist and no follow up kick, high kick. जैसे कट किक जो मोस्टली क्या होता है, कट किक और फेकिंग करते हैं जब वो बिलो द वेस्ट लेते हैं, और अगर उसके साथ फॉलो अप, उसके साथ अलोंग कोई किक या पंच नहीं है, दैट इज बिलो द वेस्ट और लिफ्टिंग द नी, गम जम पेनल्टी. कट किक और लिफ्टिंग लेग, if attack above PSS level, cut or push kick is allowed. यहाँ पे ध्यान रखें सभी कोचेस और जो भी एथलीट्स अगर यहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं. If attack above PSS level, cut or push kick is allowed as long as foot comes down within 3 seconds. कोई भी कट किक लेते हैं 1, 2 आपको डाउन करना है. More than 3 seconds, within 3 seconds आपको डाउन करना है, otherwise penalty. When the foot touch the mat, the 3 second count is reset. अगर 3 सेकंड से पहले वो डाउन करता है, दोबारा किक उठाता है, there is no contact. If cut kick is aimed below PSS level without follow up kick, अभी बोला था कि अगर कोई भी कट किक लेते हैं उसके साथ कोई हाई किक नहीं है, चाहे PSS लेवल पे हो चाहे हेड PSS लेवल पे हो, गमजम will be given immediately even there is no attack. अगर कोई पंच भी नहीं है तब भी वहां पे, अगर कोई कट किक के साथ आप पंच लेते हैं, there is no problem. For any leg lifting once or cut kick below PSS level, no gum jump if it is followed by immediate high kick. अब इसी पॉइंट को बार बार एम्फेसाइज किया गया है, इंपोर्टेंस दिया गया है कि अगर कोई भी कट किक बिलो वेस्ट बिलो PSS लेवल का है पर उसके साथ कोई फॉलोड किक नहीं है, हाई किक और पंच नहीं है, तो ये गम जम है. It will be tolerated if the leg is lifted slightly as faking movement. It's no gum jump. Kicking below the waist, below PSS level. Any intentional attack below the PSS level, if unintentional contact occur below PSS during the exchange, no gum jump surveillance. टेक्निकल जब एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो वो अगर बाई चांस नीचे लग गई है, there is no gum jump. For example, if a contestant execute a double technique with the first kick below the PSS level and second high kick score, the score will be invalidated and gum jump will be given for kicking below PSS for first kick. यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पॉइंट में बोला गया है कि if unintentional contact occur below the PSS during exchange, कोई एक्सचेंज, टेक्निकल एक्सचेंज, कोई टेक्निक एक्सचेंज करते टाइम नीचे किक लगी है, देयर इज नो गम जंप. और यहाँ पे क्या है, जब मोस्टली जो डबलिंग किक है, डबलिंग मारते टाइम प्लेयर फर्स्ट किक हाई लेवल पे मार देते हैं और सेकंड किक मान लीजिए होगो पे या फेस लेवल पे मारा है उन्होंने, तो जो अगर स्कोर किया है तो स्कोर इनवैलिडेटेड होएगा और बिलो वेस्ट का उसको गम जंप मिलेगा. पर आजकल कोचेस जो डबलिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, वो पहले टाइम में था कि पहले थाई पे सेकंड चेस्ट पे, अभी पहले चेस्ट पे सेकंड फेस पे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अटैकिंग द अपोनेंट आफ्टर किलिंग, if the attacking motion start before KO, the attack shall not be penalized. इस मोशन को, इस पेनल्टी को करते टाइम प्लेयर और जो कोचेस भी बैठे हुए हैं प्लेयर को खिला रहे हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें न्यूड आइज से मतलब हम आंखों से देख के कई बार बता नहीं सकते, हमें लगता है कि रेफरी ने खिलाफ कर दिया उसके बाद अटैक हुआ है. और ये सारे सिस्टम तभी सक्सेसफुल हो जाते हैं जब हमारे पास सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है, वीडियो रिप्ले है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब कुछ क्लियर होता है. नॉर्मल जो
मैनुअल गेम है जो नॉर्मल हमारे सिटी में या फिर डोमेस्टिक लेवल पे जो विदाउट पीएसएस और बिना सिस्टम के गेम होते हैं, उसमें ये सब डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि पहले उसने पैर मैट से उठाया है या रेफरी का जो हैंड एक्सटेंशन पूरा एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है। इन IVR द टाइम ऑफ खल्यू शैल बी डिफाइंड। यहाँ पे इसीलिए IVR आया क्योंकि हम इंस्टेंट वीडियो रिप्ले में ही पता कर पाएंगे कि आफ्टर खल्यू है कि नहीं है। Referee Khalyu hand signal is completed with fully extended arm and at the solar plexus, and the start of the attack shall be defined as the moment that the attacking foot, अगर उसका पैर जो है वो मैट से ऑफ होने से पहले, उठने से पहले रेफरी का हैंड्स पूरा स्ट्रेट हुआ है कि नहीं, ये हम खाली वीडियो रिप्लाई में ही देख सकते हैं, नॉर्मल मैनुअल गेम में हम कभी नहीं देख सकते। If the attack does not land on the opponent body but appears deliberate and malicious, the referee still penalizes behavior with thumb jump. यहाँ पे बोला गया है if attack जो अटैक है, मान लीजिए चोंग है या होंग है, होंग ने किक करी है पर ओपोनेंट को टच नहीं हुआ है, आफ्टर खिल्यू का बोल रही हूँ, अगर टच भी नहीं हुआ है, still this is penalty for kicking after killing. Hitting opponent with head with hand, any part of arm. Hitting the opponent's hand with the hand, hitting the opponent's head with the hand, fist, arm, waist, wrist and elbow. Unavoidable contact due to the opponent lowering head by not be punished. यहाँ पे क्या है पोजीशन कि अगर चोंग किक कर रहा है और होंग बेंडिंग डाउन हुआ है और उस टाइम में उसको बाय चांस हाथ या रिस्ट या फिस्ट या पंच ले रहा था, वो बेंड डाउन हुआ है जिस वजह से फेस पे लग गई है, दैट इज नो गम जंप इफ बेंडिंग डाउन. Butting or attacking the knee. Butting the opponent with a head, intentional knee attack in close proximity to the opponent. No gum jump if opponent rushes in while player is getting ready to kick. ये बहुत important point है, मैं दोबारा दिखाना चाहूंगी. No gum jump if opponent rushes in while player is getting ready to kick. जैसे रेफरी ने कॉल किया है चोंग होंग और केशव करने से पहले अगर चोंग भाग गया है, दैट इज पेनल्टी. बट केशव बोल दिया एक बार या सीजक बोल दिया है एक बार, उस टाइम में अगर प्लेयर इमीडिएटली भागता है किक करने के लिए, दैट इज नो गम जंप. इस बात का ध्यान रखना कि कई बार रेफरी रोक देता है या पकड़ लेता है और उसको गम जंप देता है, दैट इज नो गम जंप. बिकॉज अगर रेफरी ने वंस एक्सटेंडेड हैंड से बोल दिया है कि केशव और सीजक बोल दिया है दोनों के मैच के स्टार्ट के लिए, जैसे मैच के बीच में केशव करते हैं और स्टार्टिंग में सीजक करते हैं, तो उस टाइम में अगर प्लेयर अग्रेसिवली आगे जाता है, किक करता है, दैट इज नो हार्म. आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, उसको पेनल्टी नहीं दे सकते कि रशिंग के लिए. Attacking the fallen opponent. Intentional attack to the fallen opponent regardless the degree of impact. Please distinguish between falling and fallen. यहाँ पे दो पॉइंट जो है, falling और fallen में क्या डिफरेंस है. falling का मतलब है at the time is falling down, it is continuous process. अभी वो नीचे नहीं गिरा है, that is falling. fallen means player already on the mat, वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, दैट इज फॉलन. तो पेनल्टी ये पॉइंट को नोट करें. इंटेंशनल अटैक टू द फॉलन अपोनेंट, नॉट फॉलिंग अपोनेंट. फॉलन अपोनेंट, देयर विल बी नो गम जंप इफ कंटेस्टेंट इज फॉलिंग एंड अपोनेंट किकिंग हिज as long as none of his her body touch the mat with the expectation of the sole of his her foot. अगर सामने वाला मान लीजिए चोंग गिर रहा है और गिरते टाइम होंग ने किक मार दिया है,
तो देयर इज नो गम जंप फॉर हार्म, क्योंकि उसने गिरते टाइम मारा है और गिरने के बाद नहीं मारा है। देयर इज सम कंफ्यूजन, कई बार रेफरीज को भी और कोचेस को भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मिसकंडक्ट फ्रॉम एन ओपोनेंट और कोच बहुत इम्पोर्टेंट है ये, स्पेशली क्योंकि इससे आपका रिजल्ट जो है, साल भर का जो मेहनत है, आप बहुत डेडिकेटिवली मेहनत करते हैं, 365 डेज आप ताइक्वांडो के बारे में सोचते हैं और एथलीट तैयार करते हैं। घर फैमिली वालों के बारे में इतना नहीं सोचते जितना आप अपने एथलीट के बारे में सोचते हैं। तो हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना है, जिस वजह से ना एथलीट का रिजल्ट खराब हो, ना आपके जो इतने सालों का जो मेहनत है वो खराब हो। नॉट कंप्लाइंग विथ रेफरी कमांड, यहाँ पे क्या है, जो रेफरी कमांड को डिसओबे करना, दैट इज नॉट कंप्लाइंग, दैट इज कम जंप पेनल्टी, इनअप्रोप्रिएट प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग ऑफिशियल डिसीजन। कोचेस मोस्टली करते हैं, बट कोचेस की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपने प्लेयर को लेके, क्योंकि हर कोच चाहता है जो मेरा प्लेयर है वो विनर है, मेरा प्लेयर जो है वो बेस्ट है। और ये सोचना भी चाहिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग ही है जो हमें रिजल्ट देता है। तो बट हमें कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कोई डिसीजन हो जाता है तो वो लाउडली क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कैसे कर दिया, ये कैसे दे दिया, ये गमजम नहीं है, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट्स गुड फॉर यू। अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द मैच, प्रोवोकिंग और इंसल्टिंग ओपोनेंट और कोच। किसी कोच को भी अपने प्लेयर के ओपोनेंट कोच को भी और ओपोनेंट प्लेयर को भी अगर आप इस तरह से किसी भी तरह से इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं या प्रोवोकिंग करते हैं, उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑल्सो अनएक्रेडिटेबल। यहाँ पे क्या है, जो कई बार क्या होता है, साथी कोच है वो रह नहीं पाते अपने एथलीट के साथ बिना जाए कंपटीशन एरिया पे। वो क्या होता है, एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं होता है, वो डॉक्टर के एक्रेडिटेशन कार्ड लेके फील्ड ऑफ प्ले में आ जाते हैं और क्या नाम है, अपने प्लेयर को देखने के लिए। वो बहुत ध्यान रखना है। एनी अदर अनडिजायरेबल बिहेवियर और अनस्पोर्ट्समैनलाइक कंडक्ट, इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी बिहेवियर है, डिसीजन के बाद भी येलो कार्ड का प्रोविजन है, तो सारे कोचेस से मेरी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा अपना कंट्रोल करके कंपटीशन को सक्सेसफुल कीजिए। पिक्चर इज वेरी क्लियर, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोच ने ऐसे सिचुएशन में ऐसे बिहेव किया होगा, आई होप, बट फर्दर आप इसको ध्यान रखना। जैसे कोच आ जाते हैं सेंटर में रेफरी को चैलेंज करने के लिए या कोई भी डिसीजन को चैलेंज है। देखिए यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि सब कुछ सेंटर रेफरी का काम है गेम मैनेज करना, और सारे जैसे स्कोर है, कोई बात है, वो चीज के लिए भी कोच क्या होता है, वो अंदर आ जाते हैं कि कैसे स्कोर आ गया, मेरे प्लेयर का स्कोर नहीं आया। देयर इज प्रोविजन, आपको लगता है कि स्कोर नहीं आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, कोई बात है, आप उसके लिए कोटा मांग सकते हैं कि टेस्टिंग के लिए टेस्ट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं और एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कोचेस को लगता है कई बार कि जो पंच है, पंच का स्कोर के लिए काफी कंट्रोवर्सी होता है कि टाइमिंग मिसमैच की वजह से कई बार रेफरी हाथ उठाते हैं और स्कोर दे देते हैं, तो बाद में तो रेफरी कोचेस को लगता है कि ये बाद में क्यों स्कोर दिया, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, आगे पीछे हो गए थे प्रेस करने में 1 पॉइंट, तो इस वजह से वो हाथ रेज करते हैं और उसके बाद वो पंच का स्कोर देते हैं। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है, आपको भी स्क्रीन पे स्कोर बोर्ड पे ध्यान रखना है कि पंच का स्कोर जो बटन है वो आगे पीछे दबाया, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हुआ हो, तो उसको भी ध्यान रखना है। फोन पे बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फोटोग्राफी करना, या अदर एरिना में अदर मैच चालू है तो फोन करके बुला रहे हैं तो आप अलाउड नहीं है ये सब चीज, ये गमजम पेनल्टी है। लाउड एंड नॉइजी कोचिंग,
कई बार क्या होता है, कोच सडनली शाउट करता है और अपने प्लेयर को एनकरेज करने के लिए डेफिनेटली, बट कई बार वो सडनली और इतना लाउड होता है, रेफरी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं उसमें, और उस टाइम में कोई भी इंसिडेंट होने का चांस रहता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं कि रेफरी पूरा आगे तक आ गए स्टेज के पास, कैसे उसको वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे मीडिया भी है साथ में। If a contestant falls, the referee shall command stand up 3 times at 3-second intervals. कोई भी कंटेस्टेंट अगर गिर जाता है किसी भी रीजन से, अगर रेफरी 3 टाइम्स 3 सेकेंड के इंटरवल में स्टैंड अप कमांड देते हैं, अगर वो डिसोबे करते हैं, दैट इज गम जंप पेनल्टी। व्हेन द कंटेस्टेंट स्टैंड अप, अ गम जंप विल बी गिवन। जब प्लेयर खड़ा हो जाए तभी जाके गम जंप पेनल्टी दिया जाएगा। If he or she is kicked below or other infraction which caused him her to fall, our opponent shall receive a penalty instead. अगर उसके ओपोनेंट ने कोई ऐसे प्रोहिबिटेड एक्ट किया है जिस वजह से वो नीचे गिरा है, तो नीचे गिरने वाले के जगह जिसने किक किया है उसको पेनल्टी दिया जाए। If the contestant refused to stand up after third request from the center referee, the referee may end the match and declare opponent as winner by RSC, referee stop contest. यहाँ पे काफी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हो सकता है मेरे बच्चे को इंजरी हुआ हो तो कैसे डिसीजन दे दिया, तो वो सब चीज के लिए प्रोसीजर है। अगर इंजरी का सिचुएशन है, सेंटर रेफरी वो सिचुएशन को जानते हैं, वहाँ पे IVR मांगेंगे या जो भी है, बट यहाँ पे सिंपल अगर स्टैंड अप बोला है, कई बार प्लेयर रेस्ट करने के लिए या हारने के बाद, कई बार गिरने के बाद उठते नहीं है, तो उस चीज का वो रेफरी ध्यान रखेंगे। Pain is not injury. Calling doctor and Keshi will be given to the injured contestant only if there is bleeding or injury to eyes, dislocation of joint or broken bone, twisted ankle, kick to the throat or groin, strong punch on the, to the face. Other than आप कोई भी पेन में प्लेयर टाइम मांगता है या इंजरी का बहाना करता है, देयर इज नो टाइम रेस्ट, टाइम आउट। इस बात का ध्यान रखना है, पेन इज नॉट इंजरी। स्ट्रॉन्ग किक लगी है, काउंटिंग हुआ है, उसके बाद प्लेयर नहीं उठ रहा है, दैट इज अनदर सिचुएशन। बट कई बार किक लगी है, चाहे हाथ पे लग गई है, बट दैट इज नॉट इलीगल और नॉट appropriate reason to give punishment. Contestant personal equipment. If the gloves, safety, socks or PSS transmitter scoring come loose, तो contestant shall be allowed to fix it. Contestant allow है अगर उसका socks लूज हो गया है और ग्लव्स का जो वेलक्रो है खुल गया है, या जो PSS ट्रांसमीटर स्कोरिंग का जो वो निकल गया है, इस सब चीज का तो रेफरी बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि रेफरी के साथ साथ जब वहाँ पे वीडियो जूरी बैठे हुए हैं, टीम लीडर बैठे हुए हैं, वो भी पूरा ध्यान रखते हैं, और कॉर्नर जज जो है वो भी हेल्प करते हैं कि किसी का अगर ऐसे कुछ सिचुएशन हो गया तो वो भी खड़े होके टाइम स्टॉप करते हैं और प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए टाइम मिलता है उस चीज के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे एक मैं जो बात बोलना चाह रही थी अभी मैं भूल गई थी, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ प्लेयर्स को जो है वो पता नहीं है कि अपने सेंसर सॉक्स में कितने सेंसर्स है और कितने हिट के बाद जो सेंसर सॉक्स है इनइफेक्टिव हो जाएगा और उस तरह के रिजल्ट नहीं दे सकता जिस तरह के फ्रेश सेंसर सॉक्स या फिर सारे सेंसर्स होने के बाद जो स्कोर आता है। मेरी रिक्वेस्ट है सारे कोचेस से, जितने भी कोचेस है प्लीज इस बात का ध्यान रखें। अगर कई बार G1 G2 टूर्नामेंट में प्लेयर बाहर जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग भेजते हैं, कई बार आप नहीं जा पाते तो प्लेयर को आप भेज देते हैं कि बच्चा एक्सपीरियंस ले और अपना पॉइंट भी जोड़े।
और फैमिली और उनके पेरेंट्स पैसे भी खर्च करते हैं, पर वहाँ पे प्लेयर को पता नहीं है कि मेरे सेंसर सॉक्स के अंदर कितने सेंसर्स हैं। वो उस टाइम में चेकिंग के टाइम में रेफरीज भी गाइड करते हैं कि आपका जो सेंसर है वो मिसिंग है। कई बार वो बोलते हैं कोई नहीं चलेगा, हम कर लेंगे, हमारे पास तो यही है, हम अभी परचेज नहीं कर सकते या जो भी है। तो इससे काफ़ी आपका रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था। ऐसे इंसिडेंट मेरे सामने बहुत बार हुआ है और स्पेशली हमारे इंडियन एथलीट के साथ भी हुआ है। तो मेरा कंसर्न मेरे कंट्री के, मेरे देश के बच्चों के लिए है। तो इस बात का ध्यान रखें। और सेकंड बात ये है, बच्चों को ये नहीं पता कि कितने हिट के बाद जो सेंसर है वो खराब हो जाते हैं या फिर उस तरह के रिजल्ट नहीं दे पाते। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे कोचेस से इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि जैसे सेंसर PSA से जैसे 5000 हिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ का ध्यान रखें प्लीज़। और आगे अपने प्लेयर को जब भी हम बाहर भेजते हैं उनको पूरा कंसर्न के साथ सेंसर सॉफ्ट चेक करके, सेंसर सारे पॉइंट को देख के तभी आगे भेजें, नहीं तो सारा मेहनत आपका और पेरेंट्स का जो होप है वो लूज हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग सारे सुन रहे हैं मेरे को, इफ एनीथिंग टू डू विथ PSS कम लूज, transmitter disconnected, that will be fixed it immediately by referee करते हैं, तो प्रॉब्लम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एज ए कोच आप पूछ भी सकते हैं कि स्कोर नहीं आ रहा है, उसके लिए टेस्टिंग के लिए पूछ सकते हैं। पर ध्यान रखें, आपको थर्ड राउंड में अगर पूछते हैं तो आपका कार्ड लिया जाएगा। अगर आप सही है तो कार्ड आपको रिटर्न होएगा, अदरवाइज इट विल बी सबमिटेड। Tapping of feet and hand will be strictly checked during the inspection process. अभी मैंने बोला था इंस्पेक्शन एरिया में रेफरीज काफी ध्यान रखते हैं ये सब चीज का, क्योंकि वही सेम रेफरी होते हैं जो सेंटर में कर रहे हैं, वही रेफरी होते हैं जो इंस्पेक्शन में होते हैं। तो वो बहुत केयरफुल होते हैं प्लेयर के लिए, टेपिंग के लिए। सॉरी तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर किसी प्लेयर को, कई बार क्या होता है सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में आते आते कई प्लेयर को इंजरी हो जाता है, वो एक्सेस में टेपिंग करते हैं, बट उसके लिए आपको कमीशन डॉक्टर जो है अप्रूव्ड बाय एक्सेसिव टेपिंग के लिए WT कमीशन डॉक्टर से आपको एक कागज पे लिख के लाना होता है, सिग्नेचर करा के कि हाँ कि ये अलाउड है, ये डॉक्टर ने करके भेजा है। तो उस टाइम में आपको इंस्पेक्शन से पास किया जाता है, अदरवाइज यू हैव टू रिमूव। 2 gum jump for 1 Kalyu, सारे जानते हैं, बट फिर मैं आपको बता देती हूँ। सेंटर रेफरी विल अवॉइड गिविंग 2 gum jump एक्सपेक्ट फॉर अटैक आफ्टर Kalyu और मिसकंडक्ट बाय कोच और कंटेस्टेंट। इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में सेंटर रेफरी कॉल टू Kalyu बिकॉज चोंग कंटेस्टेंट हैज स्टॉप आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन। क्योंकि बाउंड्री लाइन से बाहर गया है, इसलिए रेफरी ने कॉल किया है Kalyu, कॉल किया है मींस कमांड दिया है Kalyu, बट उसके बाद चोंग किक अगेन, इवन थर्ड रेफरी हैज क्लियरली एक्सटेंडेड हिज और हर आर्म टू इंडिकेट Kalyu, जबकि रेफरी ने ऑलरेडी जो हैंड सिग्नल है वो एक्सटेंड है और वो क्लियर वॉइस में बोला है और सबने सुना है इस बात को। और उस टाइम में भी, उसके बाद भी अगर वो किक मार देते हैं, चोंग विल रिसीव 2 gum jump for 1 stepping out for like crossing the boundary line and after Kalyu. Second point is same like center referee may give second gum jump to coach or contestant if he or she protest or insult this. जैसे मैंने बोला ये सेम इसके साथ रिलेटेड है। अगर जैसे चोंग बाहर बाउंड्री लाइन से बाहर गया है और रेफरी ने स्टॉप किया है और उसके लिए वो जैसे गम जम देने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम में कोच कुछ लाउडली बोल देता है या कोई बात होती है तो इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज गम जम। वन फॉर फॉलिंग डाउन, ग्रैबिंग, पुशिंग एक्सेट्रा, और सेकंड वन फॉर मिसकंडक्ट। और जैसे गिर गया है या ग्रैबिंग है या पुशिंग है, उसके लिए कमांड दिया है तो रेफरी बोल पड़ रहा है, कोच बोल पड़ता है मेरे प्लेयर ने ग्रैबिंग नहीं किया है या मेरे प्लेयर ने पुशिंग नहीं किया है, आप क्यों दे रहे हैं। उस टाइम में वो सेकंड गम जंप जो है मिसकंडक्ट के लिए दिया जाता है। If Chong contestant grab Hong leg and cause his her
to fall down. Chong continue to attack and fallen opponent. Chong received the gum jump for grabbing and second one is misconduct. ये सब points जो है वो आप pen down कर सकते हैं. All coaches are well qualified and well experienced. दिल्ली में ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है मैं अटेंड करती हूँ, बट मेरे जो फीमेल कोच जो फेवरेट रहे हैं वो कानन मैम है, स्पेशली कानन मैम. थैंक यू वेरी मच, यू आर अटेंडिंग. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सीनियर जो मेरे साथी हैं और कोचेस हैं जिनके सामने आज मुझे ये प्रेजेंटेशन देने को चांस मिला है. पॉइंट्स मस्ट बी इनवैलिडेटेड. कौन कौन से पॉइंट है जिसको इनवैलिड करना है? स्कोरिंग पॉइंट आफ्टर खिलियो. अगर प्लेयर स्कोर करता है आफ्टर खिलियो दैट शुड बी इनवैलिडेड. स्कोरिंग पॉइंट फॉलोइंग प्रोहिबिटेड एक्ट. कोई भी प्रोहिबिटेड एक्ट जैसे कि मैंने अभी बोला था एग्जांपल में डबलिंग किक है, एक किक हाई पे है, सेकंड किक पीएसएस पे और फेस पे है और प्लेयर ने स्कोर किया है तो प्रोहिबिटेड एक्ट फॉलोड बाय प्रोहिबिटेड एक्ट है तो स्कोर इनवैलिड किया जाएगा. देयर इज नो चॉइस एंड नो डिस्कशन. तो रेफरी अगर रेफरी ने कभी गलती से मिस कर दिया है पॉइंट एनाल करने के लिए, दैट इज प्रोविजन. आप कोच जो है अपना कोटा दे के पूछ सकते हैं कि मेरा जो प्लेयर जो स्कोर किया है वो इनवैलिड करना आप भूल गए, आपने गंजम दे दिया पर पॉइंट इनवैलिड करना भूल गए, ये आप पूछ सकते हैं. पॉइंट स्कोर बाय टेक्निकल इश्यूज. फैंटम पॉइंट्स ये बहुत बार होता है, कई बार नए सेंसर सेट आते हैं, उस टाइम में ऐसा होता है कि प्लेयर अभी अरीना में बाउंस कर रहा है, अब किक भी नहीं लिया है और उधर 3-3-3-3 स्कोर आना शुरू हो गया है, दैट इज फैंटम पॉइंट. और कोच जो है अपने प्लेयर के साथ साथ स्कोर बोर्ड पे बहुत फोकस करने की जरूरत है. कई बार स्कोर आ जाता है पता भी नहीं चलता, सामने वाले प्लेयर ने चेस्ट पे पीएसएस पे चेस्ट गार्ड पे किक मारी है और वहां पे 5 स्कोर कर रहा है. अगर स्कोर कर रहा है तो आप हाथ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ है, तो वो वीडियो रिव्यू में और देख सकते हैं और आपको कंफर्म कर सकते हैं. फैंटम पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है कोचेस को. गोल्डन पॉइंट एंड डिसीजन सिक्योरिटी. बहुत सारे प्रेजेंटेशन मैंने अपने अब तक के एक्सपीरियंस में देखा है, सब ओलंपिक के प्लेयर और बहुत टॉप प्लेयर के नाम लेते हैं, उनके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बट मैं जो हूँ मैंने फर्स्ट टाइम अपने जो एथलीट्स है, जो प्राउड एथलीट्स है इंडिया के, उनके नाम से मैंने कुछ बनाया है रिजल्ट्स, तो आप ध्यान रखना और हो सकता है आप लोगों को पसंद भी आए. Golden point round, score 2 or more points to the PSS or 2 punch or 1 punch 1 gum jump to the opponent, 2 gum jump to the opponent. That is golden point round में जो स्कोर करता है वो विनर है. Second is if neither contestant has scored 2 points after the completion of the golden round, the winner shall be decided by superiority based the following criteria. अगर दोनों जो एथलीट है दोनों ने स्कोर किया है और दोनों ने बिल्कुल स्कोर नहीं किया है तो कौन कौन से क्राइटेरिया है जो सुपीरियरिटी डिसीजन का, ये मैनुअल में बहुत प्रॉब्लम आती है. मैं सारे कोचेस को बोलूंगी कि आप लोग भी नोट डाउन करना, आप भी ध्यान रखना, मैनुअल में बहुत दिक्कत आती है सुपीरियरिटी राउंड में, क्योंकि हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज, कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं. मैंने एक बनाया है, आप इसको देख लीजिए. लतिका भंडारी एमपी से है, जो सब जानते हैं, मैंने उसका नाम पहले लिया है, फीमेल. यहाँ पे चौंग जैसे पंच का स्कोर है और हिट इसका 3 है और राउंड फर्स्ट है, गमचुम 5 है और हॉन्ग जो है उसका फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, पंच का जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट क्राइटेरिया में सामने वाले हॉन्ग का जो है 0 है. जब हमने क्राइटेरिया यहाँ पे पंच ले लिया, जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा पंच है, अटैक है, तो हमने यहाँ पे पंच का ले लिया स्कोर, तो यहाँ पे विनर हो गए लतिका भंडारी, क्योंकि
पंच स्कोर किया है 1 और होंग का 0 है। हम आगे तक जाएंगे ही नहीं क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया जो है हमारा फुलफिल हो गया है। सेकेंड टेबल में बना रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया जो है यहाँ पे नवीन SSCB से है। चोंग 1 पंच और होंग 1 पंच, दोनों का पंच जो है 1-1 है। यहाँ पे हम सेकंड क्राइटेरिया पे जाएंगे क्योंकि फर्स्ट जो स्कोर है वो टाई है। अभी सेकंड क्राइटेरिया पे जाएंगे। हिट यहाँ पे पूछेंगे हिट क्या है। हिट तो है पर हिट क्या है। यहाँ पे जब अप्रोप्रिएट हिट लेवल को हम टच नहीं करते, दैट इज हिट लेवल। जब हिट लेवल को हम टच कर जाते हैं तो वहां पे स्कोर आ जाता है। जो हिट लेवल से थोड़ा सा हम नीचे रह जाते हैं, दैट इज हिट। हिट रजिस्टर हुआ है यहाँ पे ब्लू का जो है 3 हिट रजिस्टर हुआ है और होंग का जो है रेड उसका 5 हिट रजिस्टर हुआ है। तो सेकंड क्राइटेरिया में जो हिट लेवल है वो रेड का है, होंग का है। तो सेकंड क्राइटेरिया के अनुसार उसको फॉलो करते हुए हम सेकंड क्राइटेरिया में हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाल दिया, होंग इज विनर। आप पढ़ सकते हैं, इसको पेन डाउन कर सकते हैं, चाहे आप चाहो तो पिक्चर भी ले सकते हैं। हाँ, इसमें आपको एक बात और बता दूं, ये जो है आपको मैंने शो किया है हिट लेवल कि कितना हिट लेवल होना चाहिए किस कैटेगरी में और किस एज ग्रुप, जैसे मेल डिवीजन है, फीमेल डिवीजन है और वेट कैटेगरी है, जूनियर सीनियर है। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए। हिट लेवल आपके मन में डाउट आ रहा होगा, हिट लेवल जो है मान लीजिए हिट लेवल में चोंग ने किक मारी है होंग को, पर वो उतना हिट लेवल नहीं है जिस वजह से वो स्कोर नहीं किया। बट वो जो हिट किया है, जो किक किया है, वो ग्रैबिंग के साथ हिट किया है, दैट इज मिस्ड हिट। और उस हिट को जब हैंड सिग्नल रेफरी ऐसे करके दे देते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो फिस्ट क्लोज करके जो ये सिग्नल देते हैं, दैट इज मिस्ड हिट। इसका मतलब ये है कि हमने इसको गमजम पेनल्टी दे दिया, तो जो इसका हिट लेवल रजिस्टर हो गया है, इस हिट लेवल को आप डिलीट कर दीजिए। ये हमारे स्कोरिंग सिस्टम के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए होता है और इस बात का ध्यान रखना है, मिस्ड हिट। और ये हिट लेवल है, आप नोट डाउन कीजिए। मैं आगे बढ़ूंगी। थर्ड इज राउंड विनर। यहाँ पे वन ऑफ द फेवरेट एथलीट मार्गरेट। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया पंच है 0-0। सेकेंड क्राइटेरिया जो है वो हिट लेवल है, तो 5-5 है। जो थर्ड क्राइटेरिया है तो राउंड ऑफ विनर, तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड मान लीजिए चोंग विनर है, या फर्स्ट राउंड थर्ड राउंड चोंग विनर है और एक राउंड होंग विनर है। तो यहाँ पे राउंड जो विनर है, जिसका ज्यादा राउंड विनर है वो विनर हो जाएगा। यहाँ पे 2 राउंड चोंग विनर है, विन है, तो यहाँ पे चोंग है विनर। आप देख सकते हैं इसको। लास्ट वन इज गमजम। इसका ध्यान रखना है, पंच टाई है, हिट लेवल 0-0 है, किसी का भी हिट नहीं है, और राउंड जो है विनर, दोनों एक एक राउंड विन किए हैं। और जो गमजम है यहाँ पे चोंग का 7 है और होंग का 3 है। जो लेस गमजम है वो विनर है, क्योंकि जब गमजम हो जाता है तो पॉइंट तो अपोनेंट को मिल जाता है। तो यहाँ पे चोंग का 7 गमजम है, तो होंग इज विनर। ये बहुत क्लियर है और मैं होप करती हूँ आप सबको ये पसंद आया हो। Decision of superiority. If all above criteria are tied, a match is to be decided by superiority. The referee shall declare Bushiguro superiority. Decision of superiority by judge shall be based on technical dominance of the opponent through aggressive match management, the greater number of techniques, execution, the use of more advanced technique, both difficulty and complexity,
and display of better competition manner. यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जब बेटर कंपटीशन मैनर बोलते हैं तो फर्स्ट मैच से लेके थर्ड मैच तक एक प्लेयर का बिहेवियर और एक कमांड को फॉलो करने का जो एटीट्यूड, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये सब कुछ देखा जाता है। ये रेफरी का जो है, रेफरी को ध्यान रखने वाली बात है डिसीजन, क्योंकि सेपरेटेड राउंड में रेफरी डिसीजन देता है। हम आगे बढ़ेंगे। डिसीजन विन बाय रेफरी स्टॉप कंटेस्ट, आप सभी जानते हैं आरएसी। विन बाय फाइनल स्कोर, विन बाय पॉइंट गैप, विन बाय फाइनल स्कोर, विन बाय गोल्डन पॉइंट, विन बाय सुपीरियरिटी, विन बाय विड्रॉल, विन बाय डिस्क्वालिफिकेशन, विन बाय रेफरी पुनिटिव डिक्लेरेशन। पुनिटिव डिक्लेरेशन मतलब यहाँ पे पेनल्टीज है, 10 गमजम हो जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू बैड बिहेवियर, मैनिपुलेट सेंसर सॉक्स, जैसे मैंने बोला था सेंसर सॉक्स में कई बार कम होता है और कई बार सेंसर सॉक्स में ज्यादा हो जाते हैं। टाइम इज ओवर। बालू सर, कैन आई कंटिन्यू? हेलो बालू सर। Shivani, last 5 minutes. Okay, can continue. Last 5 minutes. Okay, thank you very much, sir. Sorry, sir, I tried to cover all the things, but it's very large. That we know because it's a vast subject. Every day it's changing also. Okay, Yes, please carry on. Okay, sir. Thank you very much, sir. मुझे लगता है ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कोचेस कोई बोर भी नहीं हुए होंगे, बट टाइम बाउंडेशन है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हमें खत्म करना है आगे। प्लीज आप इसको थोड़ा सा जल्दी कीजिए। इनवैलिड रिजल्ट मार्क, डबल क्वालिफिकेशन, इसका ध्यान रखना है। डबल क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और डबल विड्रॉल। डबल डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये है कि जब दोनों प्लेयर, दोनों एथलीट जो है डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, चाहे इंस्पेक्शन एरिया में जैसे कॉल होता है और चोंग हंग दोनों प्रेजेंट नहीं है, डबल डिस्क्वालिफिकेशन है। और डबल विड्रॉल जो है वो चोंग हंग वहां पे आ गए पर उसके बाद वो मना कर देते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, दैट इज डबल विड्रॉल। डबल डिस्क्वालिफिकेशन और अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर, ये है कि आपने कोई इस तरह से बिहेव किया है इस वजह से। नॉकडाउन, मैं क्विकली थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, आप लोग नोट डाउन कीजिए ताकि सभी जानते हैं। जो मोस्टली पॉइंट्स थे मैंने कवर कर लिया है। A knockdown shall be declared when legal attack is delivered and when any part of body other than sword, the foot touch the floor due to the force of opponent's scoring technique. Knockdown, when the contestant is staggered and shown no intention to ability to continue the result of opponent's scoring technique. जैसे कोई स्ट्रॉन्ग किक है पीएसएस लेवल पे, चेस्ट गार्ड पे और फेस पे और काउंटिंग होती है और वो कंटिन्यू नहीं करता है, दैट इज नॉकडाउन। और उसके बाद वो जब नहीं कंटिन्यू करता है, दैट इज नॉकआउट। ब्लीडिंग और इंजरी टू द आई, डॉक्टर से कंसर्न करा जाएगा उस चीज के लिए। प्रोसेस टू इवेंट ऑफ द नॉकडाउन, ये भी पॉइंट मैं आपको क्विकली बोलूंगी। हेड स्कोर अंटिल काउंट 8, कंटेस्टेंट रिकवर, कंटेस्टेंट खड़ा हो गया है फाइटिंग करने के लिए और अगर वो नीचे गिरा है, गमजम फॉर फॉलिंग डाउन अनकेसन। और काउंट अंटिल 10, कॉल द डॉक्टर इफ नीडेड, जरूरत है तो डॉक्टर को कॉल किया जाएगा। डिक्लेयर अपोनेंट विनर आरएसी, अगर हेड की जो फेस पे है नो स्कोर नहीं आया है, काउंट दिया है रेफरी ने अंटिल 8, कंटेस्टेंट रिकवर्ड। गमजम अगर वो नीचे गिरा है, गमजम फॉर फॉलिंग डाउन, उसके बाद रेफरी जो है उसका काम है आईवीआर, इंस्टेंट वीडियो रिव्यू। अगर प्रॉपर टेक्निक प्रॉपर एरिया में है तो वो एक्सेप्ट किया जाता है और ऐड किया जाता है 3 और 5 पॉइंट्स व्हाटएवर किक के हिसाब से। अगर इनप्रॉपर टेक्निक है रिजेक्ट किया जाएगा। गमजम और अपोनेंट इनवैलिड द गमजम और फॉलिंग डाउन अगर गिरा है। ओके सर, सेम ये मैंने
बहुत अच्छे से ये बनाया है आप सभी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इसको चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, प्रिंट डाउन कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगी। सेम फॉर चेस्ट गार्ड। जैसे हमने हेडगियर के लिए जैसे स्कोर आया है अंटिल 8 और 10 काउंट, सेम चेस्ट गार्ड के लिए काउंट नो स्कोर। यहाँ पे स्कोर हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज जो चेस्ट गार्ड है वो स्कोरिंग है, सेंसर है वहाँ पे। फेस पे क्यों लेते हैं? क्योंकि फेस जो फ्रंट में होता है वहाँ पे हमारा सेंसर नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे पॉइंट हम ऐड करते हैं और चेस्ट गार्ड पे हम पॉइंट ऐड नहीं कर सकते। अगर देखना चाहें तो एक सेकंड के लिए मैं यहाँ हैंग ऑन करती हूँ। कोच रिक्वेस्टिंग IBR, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। To have gum jump given the opponent for crossing the boundary line, falling down, attack after failure, attack fallen opponent, ये सभी चीज के लिए आप जो 4 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप IBR मांग सकते हैं, आप कोटा मांग सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। एनी पेनल्टी अगेंस्ट ओन कंटेस्ट, आपका कंटेस्ट का कोई भी पेनल्टी आपको लगता है रेफरी ने गलत दिया है तो आप उसके लिए कोटा ले सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट जो ऐड टेक्निकल पॉइंट, जैसे टेक्निकल पॉइंट मिस मैच हुआ है टाइम से या फिर बैक किक में 2 पॉइंट जो है वो रेफरी ऐड करना भूल गए हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं और नो प्रॉब्लम, आप कोटा मांग सकते हैं, कोई कोटा आपका रिजेक्ट नहीं करेंगे। और हम आगे बढ़ेंगे इसमें। टू इनवैलिडेट पॉइंट ऑफ द ओपोनेंट, मैंने अभी इससे पहले भी सिचुएशन में बता दिया था कि अगर रेफरी भूल जाते हैं इनवैलिड करने के लिए पॉइंट तो आप उसको रेफरी को याद दिला सकते हैं और गम जंप पेनल्टी। टू असेस गम जंप इफ रेफरी इनवैलिड पॉइंट और फॉरगेट टू गिव गम जंप, और रेफरी ने इनवैलिड किया है पॉइंट पर गम जंप देना भूल गए हैं, उसके लिए भी आप जो कोटा मांग सकते हैं। एनी मैकेनिकल मालफंक्शन, जैसे कोई टेक्निकल एरर है PSS से रिलेटेड, चाहे हेडगियर पे जो लगा हुआ है ट्रांसमीटर उसके रिगार्डिंग कोई भी बात है, आप कोटा ले सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना है, मैंने बोला है थर्ड राउंड में, दो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में रेफरी वो अपना, जब आप पूछते हैं टेक्निकल इशू के लिए रेफरी अपना ओन कोटा यूज करेंगे, आपसे नहीं लेंगे। पर थर्ड राउंड में अगर पूछते हैं या गोल्डन पॉइंट राउंड में अगर आप टेक्निकल इशू के लिए कोटा मांगते हैं या पूछते हैं तो उस टाइम में सेंटर रेफरी आपका ही कोटा ले लेंगे और एक्सेप्ट हुआ तो आपको वापस कर देंगे, अगर रिजेक्ट हुआ तो वो रख लेंगे। पंच पॉइंट गिवन टू रॉन्ग प्लेयर, इसके लिए आप मांग सकते हैं। ये सब पिन डाउन कर दिए और कोचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों जज जो है उनका टाइमिंग मिसमैच किया जिस वजह से पंच का स्कोर नहीं मिला आपके प्लेयर को, आप खड़े होकर उसके लिए वीडियो रिव्यू मांग सकते हैं। वन जज पुश फॉर पंच, वन जज पुश फॉर टेक्निकल, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं दैट इज सम प्रॉब्लम कि क्यों एक को पंच और एक इसमें दिया है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। टू जजेस पुश फॉर पंच और बट मिस द स्कोरिंग विंडो, क्योंकि दोनों ने पुश किया है, हो सकता है टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो जिस वजह से विंडो पे आपको स्कोर नहीं आया है और आप श्योर हो दोनों जज ने पुश किया है। बाकी ये जो पॉइंट है इसमें जज बहुत ध्यान रखते हैं और आपके पास प्रोविजन है, आप कार्ड आप कोटा मांग सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। टू जजेस पुश फॉर रॉन्ग कंटेस्टेंट, आपको लगता है कि सामने वाला तो पंच किया ही नहीं और ब्लू ने पंच किया है और रेफरी ने कर दिया है गलती से, बाय मिस्टेक कर दिया है, और रेफरी हाथ उठाएंगे और उनके हाथ उठाने से पहले भी आप अगर श्योर हो तो आप भी अपना कोटा यूज कर सकते हैं। दो कोचेस में रिक्वेस्ट टेक्निकल इश्यूज रिगार्डिंग द पंच पॉइंट और कर्नल जज मस्ट, मैंने बोल दिया है ये सारे डिटेल्स और दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है। वीडियो रिप्ले अपील, ऑल द रिक्वेस्ट मस्ट बी डन विद इन 5 सेकेंड, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कोचेस को। आप कई बार क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं या उधर से कोई इशारा कर रहा है दूसरा कोच या प्लेयर बोल रहा है, उसके बाद वो 5 सेकेंड हो चुका है तो आप वीडियो रिव्यू मांगते हैं तो उस टाइम में रिजेक्ट हो जाएगा, उस बात का ध्यान रखना है। विद इन 5 सेकेंड यू हैव टू अप्लाई फॉर वीडियो रिक्वेस्ट। इफ द कर्नल जज राइज हिज और हर हैंड, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे, वो सॉल्व कर लेंगे।
The contestant will be penalized with the gum jump if he misconducts if his her coach requests to testing PSS equipment during the third round. मैंने अभी बोल दिया है, थर्ड राउंड में अगर पूछते हैं, अगर रिजेक्ट हो जाता है, येलो कार्ड प्रोसीजर. A gum jump should be given before yellow card is shown. येलो कार्ड जो है देने से पहले सेकंड गम जम्प देंगे रेफरी. और येलो कार्ड हम बहुत अवॉइड करते हैं ना देने के लिए, क्योंकि हमें पता है पूरे साल जो है वो कोच बहुत मेहनत करते हैं और प्लेयर बहुत मेहनत करते हैं. उनका एक साल या फिर एक सैंक्शन की वजह से उनका करियर स्टॉप हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, कई बार एथलीट स्टेप बैक कर जाता है. तो येलो कार्ड हम कोशिश करते हैं कि ना दे, और उस तरह के सिचुएशन कोच से भी और प्लेयर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना करे. और उसके लिए मैं यहाँ पे सारा क्लियर मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं. If the coach realize his her mistake and calm down, the referee will call केसक. हाँ, कई बार क्या होता है, रेफरी ने गमजम दे दिया है कोच को और येलो कार्ड दिखा दिया है, बट अगर उसके बाद इमीडिएटली कोच काम डाउन होके वहां से सॉरी फील करता है, तो रेफरी का ड्यूटी बनता है मैच को कंटिन्यू करना, ना कि वहीं पे फिनिश करके या कोच के ऊपर गुस्सा निकाल के वहां पे मैच खत्म कर देना. इस बात का रेफरी बहुत ध्यान रखते हैं, और आप सभी भी ध्यान रखें इस बात का कि अगर आपको लगता है येलो कार्ड मिल गया है तो एक सेकंड के लिए सारे ईगो को भूल जाइए, सारे नॉलेज को भूल जाइए, काम डाउन हो जाइए उसके लिए, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट है, आपके प्लेयर के लिए भी और आपके लिए भी. If the coach offend the third time, the center referee will call human and end the match. अगर ऐसे बार बार किया, जैसे 2 times बोला मैंने गमजम देने के बाद, अगर थर्ड टाइम ऐसे होता है तो इमीडिएटली सेंटर रेफरी स्टॉप द मैच एंड डिक्लेयर द विनर. ये सेम आगे वही रूल्स है, ये कोचेस के लिए. आप इसको पेन डाउन कीजिए. कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कि टाइम अभी बहुत कम है और मैं सॉरी फील कर रही हूँ. मैं रूल अपडेट एंड इंटरप्रिटेशन, ये रूल जो है आप इसको क्विकली देख लीजिए, चाहे इसको वो कर दीजिए. व्हेन कोच चैलेंज द 2 गम जम्प इवन बाय रेफरी ड्यूरिंग द सेम टाइम फ्रेम, जैसे ग्रैबिंग और अटैक आफ्टर खेलियो, ही मस्ट स्पेसिफाई whether to invalid both gum jump or just one of them. कोच जब चैलेंज करता है कि ये जो गम जम्प है वो गलत मिला है, तो उनको स्पेसिफाई करना है कि दोनों गम जम्प जो है वो गलत है या कोई एक गम जम्प गलत है. उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा रेफरी को, उनको समझाना पड़ेगा कि हाँ, जो मेरा जो चैलेंज है वो एक गम जम्प है जो वो गलत है, मेरे प्लेयर को दिया गया है, एक गम जम्प सही है. आपको बोलना है दोनों गम जम्प गलत है या एक गम जम्प गलत है, और एक गम जम्प जो गलत है वो आफ्टर खेलियो वाला गम जम्प गलत है या आफ्टर ग्रैबिंग, जो ग्रैबिंग वाला गम जम्प गलत है या आफ्टर खेलियो वाला गम जम्प गलत है, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. इस बात का ध्यान रखना है आपको वीडियो रिप्ले के टाइम में. When the 1 minute break time between round is over, one of the contestant does not come. ये रेफरी जब कॉल करते हैं ब्रेक टाइम के बाद, इमीडिएटली प्लेयर को आना है. उस टाइम में कॉलिंग द सेंटर रेफरी, ही और शी विल रिसीव अ गम जम्प फॉर tardiness, फॉर कंपेलिंग द रेफरी कमांड. इसका मतलब रेफरी के कमांड को डिसोबे कर रहे हैं, आने में डिले कर रहे हैं. जैसे कॉल कर दिया चोंग हंग, स्टिल प्लेयर इज देयर एंड ड्रिंकिंग द वाटर एंड वाइप योर फेस एंड दिस. तो उस टाइम में ध्यान रखना है कि रेफरी कॉल होने से 1 सेकंड पहले आपको रेडी रहना है, क्योंकि 1 मिनट का जब गैप है आपको 1 मिनट से पहले आपका सारे काम फिनिश करना है. If the contestant left his her leg against the opponent while clinching to impede attack movement, he or she will receive gum jump for avoiding. जैसे कंटेस्टेंट लिफ्ट करता है लेग को अगेंस्ट अपोनेंट और किक को रोकने के लिए, that is avoiding. Rule update and interpretation. 2 IVR or request at the same time,
deliver the decision, coach or request first. जब दोनों कोचेस सेम टाइम में IVR के लिए खड़े हो जाते हैं तो जो थोड़ा सा सेंसिबल लगता है, पहले तो यही है, अगर दोनों सेम टाइम में खड़े हुए हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले चौंग से ले लीजिए अपने कार्ड और हॉन्ग से ले लीजिए कार्ड, तो उसके लिए कोच को अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं कि मेरे से पहले क्यों नहीं लिया। और अगर ब्लू कोच पहले खड़े हैं और रेड कोच बाद में, या रेड कोच पहले खड़े हैं और ब्लू कोच बाद में, तो जो पहले खड़े हुए हैं उनसे आप वीडियो कार्ड ले सकते हैं और जो रिजल्ट है वो टर्न वाइज आप डिसीजन दे सकते हैं। If the contestant step out or bounce, he or she will receive the gum jump, and she must stay outside of the alert line, about 60 centimeter from the boundary line. मतलब आप कोई भी सेंटर रेफरी उनको लेके अंदर तक नहीं आएंगे। आप उस चीज के लिए जैसे आपके कोचिंग के टाइम में आप बोल सकते हैं कि ये अंदर तक क्यों लेके आए हैं या जो भी है। नो लॉन्गर मूव फॉर सेंटर और कोर्ट एनीमोर। वहीं पे अगर क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन का पेनल्टी मिला है तो प्लेयर शुड बी स्टे देयर 60 मीटर अवे फ्रॉम बाउंड्री लाइन, नॉट मोर देन दैट। इस बात का ध्यान रखना है पॉइंट का। जंपिंग एंड क्लींस टू अवॉइड अपोनेंट, ये केस बहुत होता है। प्लेयर बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, बट फर्स्ट टाइम अगर वो बॉडी को जंप करता है, पंप करता है, ऊपर उठाता है, लिफ्ट करता है और वो 1% वन टाइम इज टॉलरेबल, बट अगर रिपीटेडली वो चीज को करते हैं, जंप करते हैं, सामने वाला किक लेते ही वो जंप कर रहा है, दैट इज अवॉइडिंग द मैच। बी केयरफुल कोच एंड प्लेयर्स, आप इस बात का बहुत ध्यान रखना है, दैट इज अवॉइडिंग द मैच। गम जंप पेनल्टी शुड बी। If contestant fall down, center referee must call stand up. ये सब कुछ हो चुका है पहले। Going. If the contestant fall down and pretend injury, ये मैं पहले बोल चुकी हूँ। ये आपके कोच के IVR में आ जाते हैं, वो सारे कोच का जो रोल है उसमें आप पेन डाउन कर सकते हैं। टाइम इशू के लिए कोच बोल सकते हैं, कोटा यूज कर सकते हैं कि टाइम स्टॉप नहीं हुआ, टाइम चला नहीं या कोई बात नहीं है। उस बात के लिए आप वीडियो रिव्यू मांग सकते हैं। टाइम इशू में इफ कंटेस्टेंट अटैक बिफोर सेंटर रेफरी डिक्लेयर के सब, उस चीज का ध्यान रखना है। गमजुम पनिश द गमजुम आफ्टर किलियो, जैसे ये सब करने से पहले अगर प्लेयर ने अटैक मोशन में आए हैं, दैट इज इफ कंप्यूटर ऑपरेटर फॉरगेट टू स्टार्ट टाइम व्हेन सेंटर रेफरी डिक्लेयर के सब, उस टाइम में भी आप उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। देयर इज प्रोविजन। इफ टाइम इज एक्सपायर बट सेंटर रेफरी डज नॉट डिक्लेयर क्यू मैच कर खत्म होने पे और टाइम स्टॉप हो चुका है, पर हो सकता है सेंटर रेफरी ने ध्यान नहीं दिया या फिर उनसे मिस हो रहा है या स्क्रीन उनके सामने नहीं है, थोड़ा डायगोनल है जिस वजह से रेफरी नहीं देख पाए और बहुत फास्ट मूवमेंट चल रहा था जिस वजह से रेफरी ने मिस किया है, टाइम आउट हो गया है, उस टाइम में आप खड़े होके आप बोल सकते हैं इस चीज के लिए। और एक चीज मिस कर गई मैं, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एंटर करने के बाद जो केशी का टाइम है वो टाइम स्टार्ट करना या बंद करने का जो भी प्रोसीजर है उस टाइम में अगर मिस कर देते हैं जो टेक्निकल पर्सन, तो आप उस टाइम में चैलेंज कर सकते हैं। एडिशनल रूल फॉर इंटरप्शन, गम जंप में भी गिवन कंटेस्टेंट रिपीटेडली जंप्स टू अवॉइड द ओपोनेंट, ये बोल चुकी हूँ, अवॉइडिंग द मैच। माउथ गार्ड को चूई करते हैं या मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, दैट इज ऑल्सो गम जंप पेनल्टी। ऑल कंटेस्टेंट मस्ट वियर माउथ गार्ड इवन, मैंने ये पॉइंट आपको इसीलिए बोल दिया साथ साथ क्योंकि ये पॉइंट जो है मैं मिस ना करूं। कई प्लेयर क्या होते हैं माउथ गार्ड पहनने के बाद क्या करते हैं, वो चूई करते हैं और मूव करते हैं, दैट इज ऑल्सो गम जंप पेनल्टी। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लेयर नहीं बोल सकता है। एंड ऑल कंटेस्टेंट मस्ट वेयर माउथ गार्ड इवन तो दे आर वेयरिंग फेस शील्ड। कंटेस्टेंट कैन नॉट यूज हिज हर हैंड और होल्ड ऑन टू हिज हर ओन फुट टू, जैसे कई बार क्या होता है प्लेयर अपने पैर को जैसे ड्रॉप किक या जैसे हुक किक लिया है और अपने प्लेयर ऊपर है, ओपोनेंट के कंधे के ऊपर है और आपने पकड़ के टच करा दिया, दैट इज गम जंप पेनल्टी।
invalidate the score and give gum jump. If the contestant retreats 3 step, वही बोला है avoiding the match. इस बात का बहुत ध्यान रखना है. Additional rule at interruption I think I have done and मेरे को लगता है sorry sir, Gautam Reddy sir and Balagopal sir, thank you for your patience and you give me such wonderful time to share my experience. थैंक यू वेरी मच सर. मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया पर मैं कोशिश कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में शेयर कर पाऊँ. मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कभी भी मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे दोबारा मौका दिया जाए. और थैंक यू वेरी मच सर. जय हिंद. और किसी को कोई क्वेश्चन है आप प्लीज भेज दीजिए. Now the question answer session is open. I request all the participants, please, if you have any questions, please place your questions on the mark your questions on the chat box. Sir, chat box में मैं देखो एक बार. The questions regarding this session only. Don't ask. Yes sir. सर आपने बहुत अच्छा बोला है. अभी जो भी क्वेश्चन है मेरे से रिलेटेड और मैंने जो भी अभी प्रेजेंटेशन दिया है या जो भी मैंने अभी अपना नॉलेज शेयर किया है उसी से रिगार्डिंग मैंने बोला था. आप अगर भूल जाओ तो अभी भी पेन डाउन कर लीजिए. जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. बाद में भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं. जब मर्जी पूछिए, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ. Actually Shivani, it's a vast subject. अभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि सिचुएशंस है ना, मैच का सिचुएशन के बीच में बहुत ऐसे सिचुएशंस आता है कि सभी को अभी इसका बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस होगा. सो वी विल गो फॉर सम मेन मतलब जो मेन क्वेश्चंस आएगा उसके रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स ओनली वी विल गिव फॉर द आंसर. सो क्योंकि यहाँ पे देखो आप देखो, if you find any good questions please. यहाँ पे सीजू कुमार कोई है जिन्होंने क्वेश्चन किया है. इफ द चोंग सच लिखा है, हो सकता है पंच हो यहाँ पे या पुशेस. इफ द चोंग पुशेस द हॉन्ग आउटसाइड द बाउंड्री लाइन. मैंने पहले बोल दिया कि आउटसाइड द बाउंड्री लाइन अगर पुश करके कोई भी प्रोहिबिटेड एक्ट करके आप हॉन्ग प्लेयर को बाहर निकाल दिया, चोंग ने अगर हॉन्ग को बाहर निकाल दिया है, दैट इज गमजम पेनल्टी. और स्कोर किया है, अगर किक करके स्कोर लिया है, स्कोर विल बी इनवैलिडेटेड. क्योंकि मैंने बोला है पुशिंग इज अलाउड इन ताइक्वांडो बट पुशिंग इज नॉट अलाउड इफ यू पुश द अपोनेंट टू आउटसाइड. अगर आपने पुश करके बाउंड्री लाइन से बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपने स्कोर किया है, स्कोर शुड बी इनवैलिडेटेड एंड गिव गम जंप फॉर पुशिंग. आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा. Thank you very much. During fight, he struck into opponent's chest. बहुत अच्छा सर. सॉरी, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन एक ने किया है और ये बहुत बार मैंने भी फेस किया है. अर्जुन राठौर ने क्वेश्चन किया है, ड्यूरिंग फाइटिंग किक स्टक इनटू opponent's chest guard, then gum jump shall be given or not. यहाँ पे सिचुएशन है, अगर चेस्ट गार्ड में स्टक हो गया है, जो लेग आपका स्टक हो गया है, नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर उस ड्यूरेशन में कुछ स्ट्रगल होता है, आप गिर जाते हो, तो आपका ही गमजुम है. बिकॉज वंस यू फिनिश योर किक यू हैव टू पुट डाउन योर लेग ऑन द ग्राउंड और ऑन द मैट. तो आपका कोई वो नहीं है. इंसिडेंटली मैं समझ रही हूँ, बट जैसे हमारा पुशिंग अलाउड है, हमने पुश किया, चोंग ने पुश किया, हॉन्ग गिर गया, इसका मतलब उस हॉन्ग को उतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए कि सामने वाले का पुश को वो टॉलरेट कर सके. अगर वो गिर जाता है तो उसका फॉल्ट है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है सामने वाले का पुश को वो करने के लिए. तो दैट इज गम जंप पेनल्टी. सर बताइए बाले सर. Same only. I think a lot of questions are coming, but now we are running time bound. So if you have any questions regarding any situations, you can directly ask to you. Please share your email ID.
Okay, sir. I put it here. My email ID as well as my WhatsApp number. You have any question, any time you can ask. I will definitely happy to answer you. There is no harm. And अभी time limit है, मैं समझ सकती हूँ. And thank you very much all of you, those who are taking part of today's session. Thank you very much, Bala sir. Bala sir, specially thank to you. Mm, I am your student of NIS certificate course. Thank you very much, sir. And all the Thank you, Shivani. Once more, I am thanking you very for your nice session because actually, जो इस session देखेगा, it's a vast subject. yes, Actually, sir. when we are attending any IR or maybe national seminar, वो 3 दिन में जो हम लोग को सिखाता है, आप within 1 hour you try to cover all the area. And moreover, हमारे जो क्या है कि rules and regulations daily it's updating because now world taekwondo is updating every day rules and regulations. Since you are a most Yes, experienced sir. person as a international referee, it was a nice session. मेरे को तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि मैं जो पार्टिसिपेंट्स है उन लोग को मैक्सिमम मतलब जिसको जो डाउट्स है आपने सभी एरिया को कवर किया है. इट वाज ए वंडरफुल सेशन बिकॉज आप सभी को मालूम है रूल्स एंड Chandra ma'am, रेगुलेशंस. thank you. Rules and regulations we cannot cover within 1 hour. It is impossible. Then also she try her best. So once again I thanking Shivani Agarwal